हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम इंग्लिश की पेडागोजी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर के पेपर के सोल्यूशन से इसकी हम शुरुआत करेंगे एंड आई जस्ट अश्योर यू दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। You have to do your part and just try to watch the video properly and understand what content are important for you. So this picture you can see, this is a July 2022 examination of English pedagogy, and 130 marks, 130 hours were the time, and 80 marks maximum were allotted. And there are 100 questions in it, and you have to try 75 successfully. So first question है, which type of assessment is used to identifying the learning deficiency? अगर learning deficiency है, अधिगम क्षमता है, तो किस तरीके के हम assessment को maintain करेंगे? Is not done. Diagnostic statement is being done for the recognition of the learning deficiency. Next question में चलते हैं, what are the characteristics of a good textbook in English? This question is very important. Always there is a question in every pedagogy that characteristics of good textbook is. So evaluation of textbook properly होना चाहिए, presentation of the content in a textbook होना चाहिए, and appropriate and examples and illustration. So evaluation of textbook, this is not a question, and presentation of the textbook is not a question, but appropriateness of examples and illustration and presentation of content, these two points are very important. So that's why we will have to take the first point also. So all of the above will be the right answer for this question. Next, evaluation is a teaching program. Evaluation program is related with. So first option is, it is continuous process that goes on during lessons. Obvious है, CCE इसी को कहते हैं, continuous comprehensive evaluation. Take place only at the end of the year? No. Take place only at the end of the lesson? No. It is an integral part of teaching? Yes. I can understand this may be a right answer, but the most appropriate answer is, it is continuous process that goes on during the lesson. So option A will be the right answer for this question. Purpose of remedial teaching is, रेमेडियल टीचिंग को हिंदी में हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं. यू आर अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट वी विल हैव टू बी बिलिंगुअल. सो पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग को हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं, और निदानात्मक का मतलब है कॉज को ढूंढ करके उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करना. सो पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज व्हाट? Teaching again the topic and content that are not properly learned. Definitely this may be a answer, because students who cannot understand properly the topic, we will have to make a remedial teaching, we will have to a diagnostic evaluation, and later on those students who have not performed well in that, we will have to give them extra lessons. So option C will be the right answer. Next question है, if your student have problem in relating of learning your subject, the best solution will be, अगर आपका student according to your expectation work नहीं कर पा रहा है, तो how you can do it? We will have to do diagnostic teaching. We will have to find out where the students are lacking, and we will have to give them extra lessons. So increasing homework, ये burden बढ़ा देगा, एंड सुपरवाइज स्टडी डेफिनेटली कॉशस होकर के आप ये कर सकते हैं. फ्रीक्वेंट असेसमेंट, इसमें हम स्टूडेंट के इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इवैल्यूएशन करते रहने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. सो वी विल हैव टू मेंटेन अ डायग्नोस्टिक टीचिंग, मींस वंस यू हैव टू टेक अ इवैल्यूएशन एंड लेटर ऑन यू विल हैव टू डू रेमेडियल टीचिंग. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन एजुकेशन? एजुकेशन का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या इंपॉर्टेंस है? So identify problems of certain business. Yes, definitely this is the right answer. To help the educator understand their strength, weakness. Yes, definitely this will be also right answer. So both option C will be the right answer for us, because we will have to find out this situation that both above sentence are correct. Next question है, what are the advantage of essay type items? essay time, इसको हिंदी में निबंधात्मक क्वेश्चंस कहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं? तो निबंधात एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप आइटम्स का प्रॉब्लम ऑप्शन क्या है? यूजफुल इन measuring the measuring specific abilities and skill. Definitely student will have to be efficient in elaboration and thinking. Promote initially creative thinking. Yes.
and low printing cost. Yeah, definitely, because you will have to write only 4 or 5 lines. That just to clear this, you can imagine that your subjective paper is very little. It consists of only 1 or 2 pages, but your objective paper is near about 15 and 17 pages. That's why low printing cost is also available. So all these three are complete answers. That's why option D will be the right answer for this. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको हम CS कहते हैं। तो चॉइस बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है, जो चॉइस बेस्ड लर्निंग सिस्टम है, इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, यूजीसी ने डेवलप किया है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टेस्ट विच असेसेस द इंडिविजुअल पोटेंशियल टू हैव लर्न स्पेशल एबिलिटी इज कॉल्ड। हम किसी स्टूडेंट की अगर उसकी लर्निंग कैपेसिटी को, उसकी एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, तो व्हाट वी विल हैव टू डू, we will have to do a aptitude test. We will have to find out how person thinks about any some questions. Aptitude test is not a test. Okay, and then achievement test, ये उपलब्धि परीक्षण होता है. We will not relate on this topic this. So option A is the right answer. Assessment for learning these uses of idea is, अगर हम assessment को करते हैं तो learning of ideas में हमें किस तरीके का assessment करना होगा. Which type of assessment will be more you can say relative or more appropriate. So summative means total assessment, formative means continuous assessment, and this formative assessment is very important for continuous learning. We will have to find out how the students are getting progress. So this option B will be the right answer. What type of component or of international education? Internal evaluation में किस तरीके के component हमको चाहिए होंगे? तो हमें assignment चाहिए होगा, टेस्ट पेपर चाहिए होगा, अटेंडेंस चाहिए होगी. तो डेफिनेटली दीज आर द इसेंशियल पार्ट, एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट this one is also correct, this one correct, this one correct. So all of these is the correct answer for this. Option D we will have to mark. Next question देखते हैं. Out of requirement of a good language proficiency test, what qualities should be there in a good English language proficiency test? Difficult? Definitely it must be difficult if we want to check the student. Enjoyable? Yes. Complex? Enjoyable must not be there. Test is test. We are not doing this for the recreation. So difficulty level, that will not be the best option. Enjoyable must not be included. Complex, no. Student must understand the content and the question properly. Reliable is the quality, means the test must be reliable. We are going to do on a very specific subject. That's why a student must get a reliable question paper. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन में इवैल्यूएशन अगर हम करते हैं तो कैसा इवैल्यूएशन होना चाहिए हमारा? तो इवैल्यूएशन जो एजुकेशन में हमारा होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड कुमुलेटिव होगा, जिसको हम CCE के नाम से जानते हैं. ओके, तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा. असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रल सेटिंग इज. अगर हम स्टूडेंट्स को न्यूट्रल सीटिंग, कॉमन सीटिंग में विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही बिठा करके कोई एक असेसमेंट मेंटेन कर लेते हैं, तो वो असेसमेंट कौन सा होगा? क्या इंटरव्यू होगा? नो, इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट. Research, it is also a research is also related with the special instrument. Observation is a right answer, because in this we don't need any type of instrument. Next question है, which of the following is not an appropriate टूल फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट? अप्रोप्रिएट टूल जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे कि हम सृजनात्मक और सतत मूल्यांकन कहते हैं, तो उसके लिए क्या चीज रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें हम असाइनमेंट देंगे ही देंगे, और ओरल क्वेश्चन यस होंगे. क्विजेस एंड गेम्स मस्ट बी देयर. एनुअल एग्जाम, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन. So annual exam is there. This option will be the right answer for 15 question. Annual exam is not needed for the continuous and formative assessment. Next question, what are the basics of English language? English language में क्या क्या basis है? Phonology, yes definitely. Word pronunciation must be needed. Morphology, yes it is also needed. Syntax, how to write a correct English. That's why option D, all of the above is the right answer for this question.
नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ द राइटिंग इंक्लूड्स। अगर आप कन्वेंशन ऑफ राइटिंग्स में देखें तो राइटिंग कैसे संभव हो सकती है। अगर एक स्टूडेंट राइटिंग करना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है, तो क्या चीजें उसके लिए होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि उसको प्रॉपर पंक्चुएशन इस के रूल्स पता होने चाहिए, सो दैट ही मे राइट अ प्रॉपर गुड इंग्लिश एंड ही मे यू कैन से कन्वे हिज आइडियाज एज पर हिज थॉट्स। Okay, so imagination and vocab, story ideas, these all are essential. अगर यहाँ पे कोई all of these option होता तो that must be a best one, but यहाँ पे हमें चूंकि एक देखना है तो proper pronunciation is must, because without it your meaning may be taken and otherwise. नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ स्पीच डिफेक्ट। स्पीच डिफेक्ट की क्या कॉजेज हो सकती हैं। एनवायरमेंटल डिप्राइवेशन, डेफिनेटली अगर स्टूडेंट को एनवायरमेंट में नहीं रखा गया है प्रॉपर्ली, ही कैन नॉट कम्युनिकेट द थिंग्स, सो दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, यस, मिस प्रोनाउंसिएशन या रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, या डेफिनेटली बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है या उसकी स्पीच में प्रॉब्लम आ सकती है, सो ऑल ऑफ द अबव will be the right answer for this. Option D will be the correct answer. Small kids in their initial stage do love pen and pencil into to and fro, up and down in the position. This way is writing is known as a, इसको हम क्या बोलते हैं। सो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इसको घसीटा मारना हिंदी में जो कहते हैं, जो बच्चे आपने देखा होगा कि इन वॉल्स एंड घर के कमरों पे, दीवार पे, फर्श पे जो पा जाते हैं उससे लिख देते हैं, ईंट पा गए, कोयला पा गए, वट एवर दे फाइंड दे जस्ट ड्रैग। सो दिस इज नोन एज ए स्क्रिबलिंग इन इंग्लिश पेडागोजी, इसे हम स्क्रिबलिंग कहते हैं। इन्वेंटेड राइटिंग वो डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग हो जाता है, जिगजैग राइटिंग अलग राइटिंग है, इवन देन बिकॉज इट इज अ मीनिंगफुल राइटिंग, एंड ड्राइंग इट इज अ पिक्चर ड्राइंग, बट स्टूडेंट्स आर जस्ट ट्राइंग टू लाइन्स एंड लाइन्स ओनली, सो दिस इज नोन एज स्क्रिबलिंग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विच इज द लुक एंड से मेथड ऑफ द रीडिंग। लुक एंड से, देखो और बोलो या देख करके बोलो, तो ये देखो एंड बोलो किस तरीके का टीचिंग मेथड है। तो अल्फाबेटिकल मेथड, नो, अल्फाबेटिकल मेथड में अंडरस्टैंडिंग होती है। फोनेटिक मेथड ये फॉलो करके चलना होता है। सेंटेंस मेथड, इसमें तो सेंटेंस होते हैं, तो दीज आर नॉट आंसर्स। सेंटेंस मेथड, नो, दिस इज नॉट आल्सो, बिकॉज स्टूडेंट्स की जो लुक एंड से रीडिंग है ये आपकी कुमुलेटिव रीडिंग है, इसमें स्टूडेंट फॉलो करते हैं। दिस विल बी नोन एज अ वर्ड मेथड, बिकॉज स्टूडेंट विल रिकॉग्नाइज द वर्ड देन दे विल से क्या बना हुआ है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देख करके पढ़ते हैं, तो दिस इज नोन एज अ वर्ड मेथड। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू। इंटेंसिव रीडिंग, कॉम्प्रेंसिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, दीज आर टाइप ऑफ रीडिंग, ये याद रखिएगा। टाइप ऑफ रीडिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश पेडागोजी। सो इंटेंसिव रीडिंग refers to what, refers to the text for the detailed information। बेकन के एसेस के अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम आर टू बी डाइजेस्टेड, सम आर टू बी च्यूड एंड सम आर टू रीड बाय द अटॉर्नी। मीन्स कुछ बुक्स होती हैं जिनको हमें थोड़ा पढ़ना है, कुछ बुक को हमको बहुत पढ़ना है, कुछ आर रीड बिटवीन द लाइन है, कुछ में समरी में पढ़ना है। सो इंटेंसिव रीडिंग अगर हम कर रहे हैं, इट मीन्स डेप्थ रीडिंग होती है। सो इंटेंसिव में रीडिंग द टेक्स्ट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन होगा, प्लेजर के लिए नहीं होगा, एडिटिंग के लिए नहीं होगा, and someone else, no, it is not also. So option A is the right answer for this question. Next है, which of the following is a true regarding language learning। language learning के संबंध में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को हम पूरी तरीके से समझ रहे हैं, कौन सी चीज हमारे लिए इसेंशियल होगी। सो लैंग्वेज शुड बी लर्न एज अ प्रॉपर स्टूडेंट लैंग्वेज लेवल, मे बी, लेकिन just want to look। Yes, language skills hinder language learning, no, this is not the answer। language skills are interrelated with each other, yes, definitely this is the correct answer, because in English language you will have to understand that our mother language is Hindi, that is our FL, that is our FL, and when we read another language, this is known as a SL। SL is second language, first language mother language, so SL is always based on FL। we will learn, if you want to speak in English, we will have to think in Hindi। अगर आप कहना चाहते हैं कि राम is going to कानपुर, तो पहले आप ये याद करेंगे कि राम कानपुर जा रहा था। okay, so in this way this option C will be the right answer for this question।
So students, you must understand that mother language is first language and English is a second language. Here a question may be formed also ki, we study English as. So always remember SL will be the right answer. Let's move to the next question. Two kind of reading skills are. Two kind of reading skills कौन सी हैं? Verbal and visual reading. Yes, it is. Slow and fast reading. Yes, it is. Silent and loud reading. These all are the reading skills. These all are type of reading skill. That's why option D, all of these will be the right answer. Next question, which of the following part of skills interpretation of the meaning play an important role? किस तरीके की स्किल से हम किसी चीज के इंटरप्रिटेशन पे ध्यान देते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट लिसनिंग एंड रीडिंग, हमें सुनना बोलना होता है, एंड देन वी विल हैव टू गो लिसनिंग एंड स्पीकिंग. नो, दिस इज नॉट रिलेटेड वन. सुबोपली, याद रखेंगे जो ये चीज होती है, ये सबसे पहले हमें जो होता है LSRW होता है. जो हमारा इंग्लिश का पढ़ने का ढंग है, वो इंग्लिश के पढ़ने के ढंग में, so proper learning of the language is always done as a L. Proper learning English is being done as a LSRW. यानी सबसे पहले हम जो बात करेंगे, स्टूडेंट पहले लिसनिंग करेगा, फिर वो स्पीकिंग करेगा. सॉरी, हियर इज अ मिस्टेक. सो यहाँ पर जो इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज होती है वो होती है LSRW. यानी स्टूडेंट सबसे पहले लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग सीखता है, फिर रीडिंग सीखता है, फिर राइटिंग सीखता है. तो जो बेस्ट हमारे साथ कॉम्बिनेशन बनेगा वो लिसनिंग एंड रीडिंग का या स्पीकिंग एंड राइटिंग का. तो कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिसनिंग एंड रीडिंग करनी है, पहले हमें सुनना है और फिर हमें पढ़ना है. तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द right answer for this question, option A. Next question is substantial data may be presented to this chart. Example of the presentation of increasing population is called. Means if any substantial data जो कि population की increasing को लेकर है, so this is known as a graphical chart because in this we will have to find graphical representation, just like in cricket match you find a graph showing the run rate, a graph showing the team performance. That is also a point where the population can be shown. फ्लो चार्ट जो होता है, फ्लो चार्ट हमारा एरो चार्ट होता है, टेबल चार्ट हमारा कंटेंट होता है, पिक्चोरियल क्वालिटी चार्ट हमारा अलग होता है, सो ग्राफिकल चार्ट रहेगा. द कोन ऑफ एक्सपीरियंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं स्टार लगाना चाहता हूँ. वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल फाइंड डेफिनेटली 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इन्वेंशंस, टाइम एंड इसकी प्लेसेस. सो एडगर डेल, दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि इन्होंने राइटिंग की इफेक्ट, रीडिंग की और टीचिंग की इफेक्टिवनेस को डिस्कस किया है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. what importance of the blackboard in the English teaching? Blackboard का English teaching में क्या important है? तो both A and B will be the right answer because the cheapest visual aid है, chalk and talk very effective method है. So option D will be the right answer. Then MOOC, इसके लिए open, what is MOOC? This is open access formal construction. No, this is not. International program, international organization for teaching a rich object, फ्री एंड ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर लर्निंग फॉर द मैनेजमेंट सिस्टम. इसको जो मैसिव ओपन ऑपरेशन कम्युनिकेशन के उसमें जानते थे. ओपन एक्सेस फॉर्मल कॉन्स्ट्रीम नहीं है. कोर्स स्टडी मेड अवेलेबल बाय इंटरनेट विदाउट एनी चार्ज ऑफ द मैनी पीपल. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज इन ऑप्शन डी हम देख रहे हैं, इसे हम मैसिव, वर्ड एम इज फॉर मैसिव. मैसिव मीन्स बहुत सारे लोगों के द्वारा है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव बाय ओईआर? ओईआर के द्वारा वेरियस इनिशिएटिव दिए गए हैं, जिनमें पीजी पाठशाला है, एकलव्य है, एनआईओएस है. डेफिनेटली दीज आर द करेक्ट आंसर. सो these all are above. All these will be the right answer. Which of the following would be the most effective tool to teach vocab to spelling to the grade children and to the grade children learning as their second language? क्या तरीका बेस्ट रहेगा बच्चों को अगर हमें इफिशियंसी के तहत उनको वोकैब समझाना है? तो हमें पिक्चर डिक्शनरी डालनी होगी. पिक्चर डिक्शनरी मींस इन विच स्टूडेंट कैन रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड दे कैन से व्हाट दिस इज कॉल्ड इन एफएल एंड व्हाट दिस इज कॉल्ड इन एसएल.
एक जैसे कि आपने एक अलमीरा दे दिया तो आप टीवी दे देते हैं, टीवी को टीवी कहता है बच्चा। लेकिन अगर आपने फैन दे दिया, फैन मान लीजिए एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन दिखा दिया तो बच्चा कहेगा ये पंखा है, और देन वी विल हैव टू आंसर हिम दैट इज इट इज कॉल्ड फैन इन इंग्लिश। So picture dictionary is the best one. Next option, next question है, when selecting the teaching learning material, the teacher should take the care of the following points. टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सब कुछ टीचर को देखना चाहिए। अगर वो लर्निंग मटेरियल देखता है तो क्या क्या चीजें वो देखेगा, तो डेफिनेटली उसे इन सब के साथ क्या देखना चाहिए। यहाँ पे ऑल ऑफ द दीज अबव आंसर है, बट प्राइस मस्ट नॉट बी टेकन दैट टीचर्स एबिलिटी, नो दिस इज नॉट एसेंशियल। प्रैक्टिकलिटी इज द आंसर, it is useful and practical in the use or not, this must be in a teaching learning material. So option B will the right answer, all of the above will be wrong. Next question है, what are the objectives to the English laboratory? English laboratory अगर बनाई जाती है तो उसके aim क्या है? To develop reading skill, yes, and to develop the pronunciation, yes, to develop the listening skill, definitely. So all of the above will be the right answer for this, and D option will be the right one. Next question, which of the following teaching aid is not a visual aid? Again this question is being asked. I have just confirmed many times that all pedagogical subject teaching learning material will be asked. So option है audio visual teaching aid में which of the following teaching aid is not a visual one? Visual one क्या नहीं है, तो slide tape recorder. Tape recorder is a voice related teaching learning material, that's why option B will be the right answer for this. By using the audio visual teaching aid, what can be done? So student became active in the classroom learning, definitely this is one is correct. And then teacher became acting in teaching, active in teaching, yeah, definitely it is correct. Teaching became effective, yes, correct. So all of the above, all of the above will be the right answer for this question. Next question देखते हैं, selection of teaching aid depend on the largely on which one is the essential condition? teaching aid depend किस बात पर चलेगा, किस बात से इसे हम इफेक्टिव देख सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखें तो एजुकेशनल लेवल एंड द एज ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी डिसाइडेड, and by this we can decide that which type of instrument and which type of teaching learning material are being used for the student. Audio visual aid can be the used for in the language में communication के लिए definitely हम कर सकते हैं इसको, and retention, yes, student learn कर सकते हैं चीजों को, saving time ये भी important है। So all of the above will be the right answer for this question. And next question है, a plan which consists of many lesson is called? एक जो क्वेश्चन प्लान है जो हम बनाते हैं और जिसमें बहुत सारे कह सकते हैं लेसन प्लान होते हैं, तो वो एक लेसन प्लान नहीं हो सकता। ऑप्शन बी विल नॉट बी द आंसर। ईयरली प्लान वो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। एंड नन ऑफ द अबव। अभी इसके पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं, यूनिट प्लान, दिस वन इज करेक्ट। unit plan is correct because in unit we will find many topics, and in those topics we will have to form many lesson plans, that's why unit plan will be the right answer. Next question है, a teacher's plan for teaching an individual as lesson is called? अगर हम किसी एक इंडिविजुअल लेसन के लिए कुछ बना रहे हैं तो दिस विल बी नोन एज अ लेसन प्लान, बिकॉज लेसन प्लान इज रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अ यूनिट प्लान? यूनिट प्लान की मेरिट्स क्या हैं? तो यूनिट प्लान जो होता है वो मैंने पीछे डिस्कस किया, जो कि बहुत सारे लेसन के लिए होगा। तो इनेबल द टीचर टू वर्क कंटिन्यूअसली इफेक्टिवली, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। learning process became more effective, yes, it is correct. Learning experiences are integrated manner of the student, yes, definitely. So option D is the right answer for this question. Next 40 question, how does an introductory statement help get a student to learn a new concept? प्रस्तावना प्रश्न, this is a introduction question, ये lesson plan से एक pedagogical issue है। So introductory जो हमारा होता है, introduction जो हम कराते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के प्रेजेंट नॉलेज को करंट टॉपिक से जोड़ता है। तो इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू बिगिन आंसर दैट टॉपिक, नो दिस इज नॉट वन। सेकंड है, इट इज नॉट हेल्पफुल एंड एवरी टीचर शुड अवॉइड इट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू बिकम अटेंटिव, यस, दिस वन इज करेक्ट, this one is correct. And here always remember this one also I will mark a star, because you can find here all of the above.
ऑल ऑफ द अबव इज नॉट राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मैनी ऑफ यू, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि जिस भी मल्टीपल चॉइस में ऑल ऑफ द अबव मिल जाए उसी को टिक कर देना, वही सही होता है। आज के समय में एग्जामिनर ये बात जानता है कि आप किस तरीके से आंसर टिक करते हो, तो ऑल ऑफ द अबव 50% ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है। नाउ सिस्टमैटिक एंड लर्न बैलेंस्ड मैनेजमेंट, systematic and balanced management arrangement, not management, of the create content by which teacher can teach the student to relevant is called। अगर कोई बाई चांस हम सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड प्लान बनाते हैं तो वो क्या होगा, तो वो यूनिट लेसन प्लान होगा जो बहुत सारे लेसन को लेकर के बनाएगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द ईयरली प्लान, ईयरली प्लान के एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस में गाइडलाइन फॉर इंटायर एकेडमिक ईयर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर इन दिस मैटर बिकॉज ऑल आर इसेंशियल। this one is correct, this one is correct, this one is correct। Next sentence, next question, examining and breaking down the information and material into parts is known as analysis। मैंने पहले कहा यूनिट को अगर तोड़ के चलते हैं तो वो एनालिसिस होता है, यूनिट को जोड़ के चलते हैं तो वो हमारा सिंथेसिस होता है। सो एनालिसिस टीचिंग मेथड इज देयर, विश्लेषण इसको बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमी आर फॉलोड। टैक्सोनॉमी को किस लेवल से फॉलोड किया जाता है, यानी टैक्सोनॉमी के लिए क्या है, तो टैक्सोनॉमी हमेशा लोअर से अब जाती है। ये बात याद रखिएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो नॉलेज है वो सबसे नीचे है और जो इवैल्यूएशन है वो सबसे ऊपर है। नॉलेज वन लेवल पर है, वन लेवल पर उनका नॉलेज है जो के से शुरू होता है, और जो इवैल्यूएशन है वो 6 लेवल पर है। तो ये अपोजिट जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए इसे हम हायर टू लोअर टू हायर कहते हैं। टैक्सोनॉमी में उल्टा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग विदाउट प्रॉपर प्लानिंग विल लेड टू। अगर प्रॉपर प्लानिंग के विदाउट आप टीचिंग करेंगे तो आपकी क्लास में क्या हो जाएगा, चाउज इन द क्लास हो जाएगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द लेसन प्लानिंग स्टेप्स इन द RCEM अप्रोच। तो RCEM अप्रोच में अदा प्रदा प्रोसेस यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और ये हमेशा ध्यान रखना ये IPO होता है, ये इनपुट आउट प्रोसेस आउटपुट होता है, यही सीरीज फॉलो की जाएगी। IOP नहीं होगा, OIP नहीं होगा, IPO इज द बेस्ट अप्रोच बाय RCEM स्कूल। नेक्स्ट है, what are the general objective of lesson plan in English prose। English prose में all of the above हो जाएगा इसमें, चूंकि all are the essential, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, mind of the child is like a blank clean slate, if new knowledge related the previous knowledge given it will be more accessible and retainable by in a longer time। This just is said by, who has said this voice statement, तो दिस इज हर्बर्ट अप्रोच। हर्बर्ट की पंचपदी के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि हमारे करंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के चलना चाहिए। नेक्स्ट है, लेसन प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द टीचर। व्हाई डू लेसन प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द टीचर, थ्रू प्लानिंग द सब्जेक्ट्स गेट्स लेंदी। नो, दिस इज नॉट अ क्वालिटी, सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। इट कीप्स स्टूडेंट फ्री फ्रॉम मीनिंगफुल टीचिंग। नो, ये भी नहीं हो सकता। एंड इट क्रिएट्स अ improper, no, improper atmosphere नहीं हो सकता। it avoids confusion in teaching learning process and saves time। option D is the right answer। lesson planning of the essential, lesson planning is essential because it help teacher ensure about, ये टीचर को किस बात के लिए इंश्योर करती है, तो डे टू डे एक्टिविटी टीचर की कैसे चलेंगी इस बात के लिए इंश्योर करती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। हु इन्वेंटेड आइडिया ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान के आइडिया को किसने इन्वेंट किया, हु इन्वेंटेड दिस, सो ऑप्शन ए हमारा जॉन हर्बर्ट को माना जाता है कि लेसन प्लानिंग का आइडिया इन्होंने डेवलप किया है। अब उसके बाद बात आती है, हु इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ लेसन प्लान, अगेन 51, तो यहाँ पर भी जॉन हर्बर्ट, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो ऑप्शन सही करेंगे। प्लान प्रिपेयर्ड बाय द टीचर टू टीच द लेसन प्लान इज कॉल्ड। अगर एक लेसन को प्लान करने के लिए टीचर ने एक प्लान बनाया है तो ये लेसन प्लान क्या कहलाएगा, तो ये लेसन प्लान चूंकि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, ये लेसन प्लान कहलाएगा। अगर वो कई सारी प्लान को लेता तो वो हमारा यूनिट प्लान होता, कोर्स से पे बहुत ज्यादा होता तो वो कोर्स प्लान होता, मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट होता है जो होल ईयर के लिए होता है। व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या चीजें होती हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आती हैं। होलिस्टिक
होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, तो फिजिकल इंटेलेक्चुअल यस होता है, सोशल एंड इमोशनल यस होता है, स्पिरिचुअल होता है. So in this way option D will be the right answer for this question. Next question is what are the benefits of the holistic approach in the language learning? Language learning में holistic approach क्या करेगी? सब कुछ करेगी, इसलिए ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ऑल ऑफ द अबव को देख करके टिक करें. मोस्ट ऑफ द टाइम आई एग्री दैट 50% टाइम ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बट 50 टाइम it will you will find that one of the option will not be applicable. In that case you will have to go for a particular choice. Now strength approach requires a certain deficiency. Step out of these step. First step is, अगर हम structural approach पे चलते हैं, structural approach जिसे कि हम परियोजना विधि कहते हैं, तो उसमें हम किस चीज को फॉलो करेंगे? तो स्ट्रक्चरल जो संरचनात्मक उसमें है, हम ओरल ड्रिल करेंगे, मौखिक स्टेटमेंट देंगे. बीएफ स्किनर क्लेम दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू. लैंग्वेज को किस तरीके से लर्न किया जा सकता है, इस विषय पर हमारे बिहेवियरिस्ट जो हैं बीएफ स्किनर जी, उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि ये री-इन्फोर्समेंट एंड इंगेजमेंट से चलेगी. अगर बच्चे को लगातार आप फीडबैक देते रहेंगे और बच्चे को इंगेज रखेंगे तो वो लैंग्वेज सीख जाएगा. which is not a criteria of the selection of structure. अगर structures को आप देखते हैं तो क्या criteria आप नहीं देखेंगे? Usefulness, this one will be नॉट पूछा गया, इसलिए बी केयरफुल. नॉट में तो हमेशा ध्यान रखना है, यूजफुलनेस होगा ही होगा, प्रोडक्टिविटी होनी ही चाहिए, सिंप्लिसिटी एंड टीचेबिलिटी ये भी चाहिए. बिल्कुल 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 क्लियर है. और नेक्स्ट ऑप्शन है जो फैमिलियरिटी ट्रैप हैं, ये नहीं होने चाहिए. इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को जानबूझकर फंसाना नहीं होना चाहिए, ऐसे आंसर्स नहीं दिए जाने चाहिए जो स्टूडेंट को ट्रैप करें. हालांकि ये बाद में लेटर ऑन आप चेक करने के लिए कर सकते हो, बट बेसिकली नहीं. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज नोन एज द सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग क्या कहलाती है? तो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग जब हम करते हैं तो हम किस चीज को देखते हैं? तो ऑप्शन ए ओरल अप्रोच होती है. बच्चों को सतर्कता अलर्टनेस के लिए हम इस चीज को अपनाते हैं, हम ओरल ड्रिल कराते हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोग्राम अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब स्ट्रक्चरल टीचिंग प्रोग्राम करेंगे तो क्या चीज पे हम ध्यान देंगे? वर्ड ऑर्डर पे ध्यान देंगे डेफिनेटली, पैटर्न ऑफ फॉर्म पे ध्यान देंगे क्योंकि फ्रॉम इजी टू टफ होना चाहिए. सो ऑप्शन सी, दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. सी, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एम ऑफ द बिलिंगुअल मेथड इन टीचिंग इन इंडिया. इंडिया में बिलिंगुअल टीचिंग करते समय हमें क्या मेन एम है? तो अगर यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पर भी सारे एम हमारे इक्वल हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट बिकॉज हम प्रेजेंटेशन सही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रोडक्शन हो जाएगा. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट मेथड इज. डायरेक्ट मेथड अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को सीधे हम लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाते हैं और उनको हम डायरेक्ट मेथड में कनेक्टिविटी के उसमें नहीं चलते. तो डायरेक्ट मेथड को अगर हम प्रॉपर करते हैं, डायरेक्ट मेथड में सीधे हम इंग्लिश पे आते हैं, तो मदर टंग को हम यूज नहीं करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्ट मेथड में हम एफएल नहीं यूज करते, डायरेक्ट एसएल पे आएंगे. अगर हम मदर टंग का यूज करेंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होगा, यानी हम हिंदी पढ़ा करके इंग्लिश की तरफ आते हैं. हाउ ग्रामर इज टॉट इन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड. ग्रामर में ट्रांसलेशन कम एंड ग्रामर मेथड में कैसे इसे पढ़ाया जाता है? तो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ाते समय हम डिडक्टिव अप्रोच पे काम करते हैं. पहले हम रूल्स बता देते हैं बच्चों को एंड देन लेटर ऑन वी विल गिव एग्जांपल एंड देन वी विल जस्ट एक्सप्लेन दैट आइडिया. यानी रूल्स को हम डिकोडिफाई करते हैं, उसके कंस्टेंट को देखते हैं कि रूल किस तरीके से काम करता है. 63 नंबर पर देखते हैं स्किल और द स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल इज नोन एज अ. अगर हम किसी गोल को पाने के लिए कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो वो स्ट्रेटजी हमारी क्या कहलाती है? यह एक अप्रोच उपागम हो सकता है, होता है मेथड हो सकता है, होता है टेक्निक, सब कुछ होता है. तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? मैंने पहले ये भी कहा कि डायरेक्ट मेथड में मदर लैंग्वेज को यूज नहीं करते हैं. तो टीचिंग ऑफ कांस्टेंट कन्वर्सेशन, लगातार आपको बच्चे को इंग्लिश यूज करानी होगी. टीचिंग असिस्टेंस देना होगा जिससे कि बच्चा अपनी चीजों को सही से प्रोनाउंशिएट कर पाए, वो बोल पाए. एंड देन टेक्निक ऑफ लुक एंड से, देख करके बोलो. जैसे पंखा है तो पंखे में फैन सीधे पढ़ाएंगे, हिंदी को डिलीट कर देंगे वहां से. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल मेथड इन टीचिंग इंग्लिश. तो शुरुआत में सबसे पहले हमने इंग्लिश को पढ़ाने के लिए किस तरीके के मेथड को फॉलो किया है? तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड वाज वेरी इंपॉर्टेंट. हम बच्चों को ग्रामर पढ़ा करके ट्रांसलेशन की तरफ ले जाते थे. तो दिस वन इज द बेस्ट वन इन ओल्डेस्ट क्लासिकल मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड बिलिंगुअल मेथड. बिलिंगुअल मेथड का डेवलपमेंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश टीचिंग के लिए किसने किया है? तो ये जो हमारा डेवलपमेंट किया है ये प्रोफेसर सी जे डॉटसन ने किया है.
इसलिए ऑप्शन डी सही, बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड फॉर टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए नेचुरल मेथड कौन सा है और कौन सा मेथड नेचुरल मेथड कहलाता है? तो यहाँ पर आप देखिए, डायरेक्ट मेथड जो है वो नेचुरल मेथड कहलाता है, यानी स्टूडेंट्स को आप डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश को जब टीच करेंगे तो आप इसे हम नेचुरल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच होता है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। प्रीपोजिशंस के करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको बेसिक नॉलेज होगा। क्लॉक के द्वारा वॉच समय दिखाया जाता है, इसलिए बाय होगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सीता पास्ड मी। ये क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सीता पास्ड मी डैश बाइसिकल। तो इन दिस सेंटेंस वी विल फाइंड दैट ऑन होगा, क्योंकि ऑन हर बाइसिकल, सीता अपने बाइसिकल पर थी तब उसने मुझे पास किया। मेन वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ। मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड बोलते हैं, बिकॉज इसमें हमें काम करना सिखाया जाता है, कोई काम शो हो रहा होता है। सोमाना हैज बीन प्लेइंग विद द टॉय फॉर 5 years, फाइंड आउट दिस टेंस। अब ये हैज बीन है तो हैज बीन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ये ऑलवेज याद रखिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ही और यहाँ पे आईएनजी भी यूज हो रहा है प्लस टाइमिंग भी दी गई है, तो ये पीपीसी हो जाएगा, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड विद दैट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर टाइम आ जाता है तो परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, वॉश ऑल प्लेट्स एंड चेंज द सेंटेंस ऑफ द पैसिव वॉइस। वॉश ऑल द प्लेट्स, दिस वन इज वेरी करेक्ट। You can find out the correction of the passive voice. I have uploaded a grammar question also. There is a playlist. If you go to the channel playlist learn English, there is a lot of matter you can learn grammar. तो लर्न इंग्लिश के नाम से आप जाकर के प्लेलिस्ट देखेंगे। ये प्लेलिस्ट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इससे आप देख सकते हैं। इस सेंटेंस को हम सीधे सीधे क्या करेंगे? वॉश ऑल द प्लेट्स है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं। लेट ऑल द प्लेट्स बी वॉश्ड हो जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू होना चाहिए, टू वॉश ऑल द प्लेट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ प्लीज नहीं है, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। रिक्वेस्टेड के कारण प्लीज नहीं होगा, सजेस्टेड नहीं होगा, एंड ऑल प्लेट्स शुड बी वॉश्ड ये भी नहीं होगा। तो यू आर ऑर्डर टू वॉश ऑल प्लेट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग अगर आप देखें तो इनमें से सकम्ब की स्पेलिंग में मिस्टेक है, चूंकि ये सकम्ब नहीं है, एंड चौफर नहीं, ये भी नहीं है। Collaboration, this one is the correct spelling. Collaboration is the correct one. And then he is expected to call me by evening. Find out the parts of speech in this sentence. तो यहाँ पर जो find out the parts of speech in this above sentence, तो इसमें जो हम देख रहे हैं वो कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया गया है, चूंकि मी का यूज हुआ है, तो कॉल मी बाय द इवनिंग होगा। द फेमिनिन जेंडर ऑफ द प्रोटेक्टर इज, प्रोटेक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? जेंडर से रिलेटेड आपको नॉलेज रखना होगा, यानी बेसिकली इंग्लिश पेडागोजी के लिए आपको ग्रामर पे बेस करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोटेक्ट्रेस होगा, जिसमें RES हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ द फ्लीट, फ्लीट FLEET, फ्लीट का प्लूरल क्या होगा? तो यहाँ पे फ्लीट का प्लूरल अगर आप देखें तो फ्लीट के प्लूरल में रूल्स क्या लागू होता है? तो फ्लीट का कोई प्लूरल होता ही नहीं है, यस नहीं लगता है फ्लीट के साथ, तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। फ्लूट हो नहीं सकता, फ्लीट्स है नहीं, फ्लीट्स है, इसलिए कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही किया जाएगा। नेवर डज ही टेल अ लाई टू एनीवन, उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। इसमें बताइए कि सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस क्या है? तो सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज ही। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन फादर नहीं है, चाइना नहीं है, सिटी नहीं है, मॉब पब्लिक भी, बंच ऑफ द पीपल है, दैट्स वाई ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑडियो बायोग्राफी, इट मींस अकाउंट दैट हैज बीन रिटन बाय अ पर्सन बाय हिज ओन सेल्फ, सो अकाउंट दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ योर ओन लाइफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। The sonnet usually contained, sonnet is a 14-line poem, so option D is the correct answer. Sonnet में दो तरीके 14-line poem, and in this there are two type of sonnet,
मिल्टैनिक सोनेट एंड शेक्सपियरन सोनेट। मिल्टैनिक सोनेट में 4-4-6 की लाइन होती हैं और मिल्टैनिक सोनेट में 4-4-4 और 2 लाइन्स होती हैं। तो ये बात याद रखेंगे, जो मिल्टैनिक सोनेट है वो ऑक्टेव और सेस्टेट रखती है और इसमें क्वाट्रेंस और सेक्सटेट होते हैं। शेक्सपियरन सोनेट में क्वाट्रेंस प्लस कॉपुलेट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रेजेंट क्रिटिकल यूजेस ऑफ एलिजी इज। एलिजी इज अ सैड पोयम रिटन ऑन अ डेथ ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो पोयम ऑफ लैमेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एम ऑफ द टीचिंग पोएट्री एट द प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल पर अगर आप पोएट्री पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चों को लर्निंग एंजॉय करेंगे रिसाइटेशन के लिए, यस, प्रॉपर इमेजिनेशन कराएंगे, बिल्कुल ठीक है, और साउंड्स ऑफ द वर्ड से। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर ऑफ टीचिंग प्रोज इज। प्रोज को पढ़ाते समय हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना चाहिए, तो प्रोज को पढ़ाते समय हमें सबसे पहले बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, रिकैप्चुलेशन दोबारा से रिमाइंड कराएं, ठीक है, होम असेसमेंट, यस डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ द sentences for the lackness of the time. Why is the storytelling is most important in English class as a primary level? Primary level पर English में story telling का क्या aim होता है? Why do we teach them? तो English पढ़ाते समय primary level पर हम बच्चों की integrated language skill develop करते हैं, जिसमें वो imagination, speaking, reading, listening सब कंप्लीट करें। टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड। टैक्सोनॉमी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की थी, जो ब्लूम के द्वारा हमारे सीखने के एम्स दिए गए, वो कब दिए गए, तो 1956 में इसको डेवलप किया गया। विच डोमेन आर कंसर्न विद द फिजिकल एंड मोटोर स्किल। कौन सा डोमेन है, यानी जो हमारा किस तरीके के फिजिकल और मोटोर स्किल के लिए हमारा कौन सा डोमेन काम करता है, कौन सा एरिया काम करता है, तो ये साइकोमोटर डेवलप डोमेन्स है, जिसमें कि हम बच्चे के मूवमेंट को ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। कोई भी कौन सी चीज है जो इंफॉर्मेशन दी गई इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करती है, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसको पहले कैसे यूज किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, अगर पढ़ाने का हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, क्रिएटिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। बच्चों को हमेशा अच्छा स्टूडेंट बने रहने के लिए, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हम प्रेरित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिएटिव कैटेगरी ऑफ RCEM मेथड। RCEM मेथड में कौन सी चीज नहीं लागू की गई है, तो इवेल्युएट करना दिया गया है, सिंथेसाइज संश्लेषण करना दिया गया है, एनालाइज करना दिया गया है, वेरीफाई इज नॉट गिवन इन दैट रीजन। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम बेस्ड बिहेवियर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग हाई टर्म इन द टैक्सोनॉमी कैटेगरी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में कौन सी कैटेगरी नहीं आती, तो अगर हम देखें तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसमें हम संज्ञानात्मक ज्ञान रखते हैं, उसमें एप्लीकेशन है और सिलेक्शन ऑफ द ऑर्डर आपको चेक करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 5-6 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आप देखेंगे क्या चीज नहीं है, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो हम अगर इस पूरे उसमें देखें तो हमारा एप्लीकेशन है कि नहीं है, एप्लीकेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन में टैक्सोनॉमी में नहीं है, एनालिसिस है हमारा और ये नहीं है, और कॉम्प्रेंशन हमारा है, क्रिएशन एडवांस में आया है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग हाँ ये है, नॉलेज ये है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है वो हमारा ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएस ब्लूम डज नॉट डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटजी। बीएस ब्लूम ने बहुत सारी चीजें डेवलप की हैं, उनका कंट्रीब्यूशन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने क्या नहीं किया है, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टेस्ट यस दिया है, डायग्नोस एंड लर्निंग डिफिकल्टीज ये दिया है निदानात्मक परीक्षण में, अटेन द मिस्ट्री ऑफ मास्टर लेवल नो 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 दिस इज नॉट गिवन, डिवीजन ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टीज ये भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज हेडेड बाय, किसने दिया है, ये हमारे किस व्यक्ति के द्वारा हमारी जो एनईपी आई हुई है, एनईपी किसने दी है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा हमारी एनईपी का फॉर्मेशन हुआ है, ये इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हेन वाज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश इन इंडिया, यूजीसी का एस्टैब्लिशमेंट हमारे इंडिया में कब किया गया है, तो यूजीसी वाज एस्टैब्लिश इन 1948 अंडर चेयरमैन ऑफ राधाकृष्णन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Establishment of diet डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द एजुकेशनल ट्रेनिंग होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ये वाज ए रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डाइट्स के इस्टेब्लिशमेंट का रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 में इस चीज को दिया गया था। नेक्स्ट है चेयरमैन द करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड बी अ प्रोसेस। करिकुलम इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है, ये किस तरीके से होना चाहिए? तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम इसे मेंटेन किया जाना चाहिए। द मेन एलिमेंट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट इज, करिकुलम डेवलपमेंट में मेन चीज क्या है? टीचिंग ऑब्जेक्टिव सही है, इवेल्युएशन प्रोसेस सही है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर बिकॉज ये दोनों को कंप्लीट करता है। हु इज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया? इंग्लिश लैंग्वेज के इंडिया में फाउंडर कौन है? तो ये फाउंडर बदलने से नहीं रहे, तो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले जो कि इंग्लिश टीचिंग एजुकेशन को इंडिया में लेके आए थे, 1935 में इन्होंने अपना मैकाले मिनट डेवलप किया था, तो वहां पर आते हैं। 1813 में एक विवाद हुआ था जिसे कि हम इंडो यूरोपियन कंट्रोवर्सी कहते हैं, इसके द्वारा ये चार्टर आया था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड व्याट 1952 स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग, जो टीएस एंड व्याट हैं इनके द्वारा स्पेशल टीचिंग के एम्स क्या हैं? एजुकेशन टीचिंग जो इंडिया में है तो उसके अंडरस्टैंड द स्पोकन रिटन इंग्लिश, यस, स्पीक इंग्लिश, यस, अंडरस्टैंड, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड इन इंडिया? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इंडिया में कब पास किया गया था? तो इट वाज पास्ड इन 1963। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज को हमने इसे पास किया है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकाले? मैंने अभी इसके पहले जस्ट डिस्कस किया हुआ है, लॉर्ड मैकाले की पॉलिसी 1935 में आई थी, तो ऑप्शन डी एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द लॉर्ड मैकाले विच इज नोन एज अ मैकाले मिनट इज नोन एज अ एजुकेशन सिस्टम, सो ऑप्शन बी विल be the right answer for this question. Thank you friends, thank you for watching the video. Kindly just consider our hard work and promote us, and do watch sincerely, and if you are interested you can buy super thanks in order to support our technical team. We will continue this effort for your development and your process. Thank you.